today we have to discuss in second topic, introduction to analytical chemistry, a new point, stoichiometric problem. So in last lecture we see what is the stoichiometric coefficient, means number of moles we have to use for a balanced chemical equation or for a balanced chemical reaction. So this number of moles, this whole number we have to use for a balanced chemical equation. So this number we call as stoichiometric coefficient. So we have to solve a different types of stoichiometric problem. We have to solve a different types of stoichiometric problem. So first, a problem based on mass-mass relationship. A problem based on mass-mass relationship, means mass-mass ratio, ratio of mass of reactant as to ratio of mass of product, mass-mass relationship. Second type, mass volume relationship. Second type, problem based on mass volume relationship. Mass volume relationship. Third type, the stoichiometric problem based on volume relationship. Volume relationship. So these three types of relation, we see a different problem based on these three types of relationship. Means mass relationship, mass volume relationship, and third type volume relationship. So step involved in problem based on stoichiometric calculation, means step involves a stoichiometric problem, means how to solve a stoichiometric problem on the basis of this three relations. First, we have to write a correct chemical equation or chemical reaction. Second type, we use a whole number, means number of moles, to balance the chemical equation or reaction. And third, we have to find out relative masses or volume should be calculated from respective formula and mass referring to the condition of STP. STP means standard temperature and pressure, and apply the unitary method to calculate the unknown factor required by the problem. Means ये problem कैसे हम solve करेंगे? First we have to write out a chemical equation, then we use a whole number. We have to means put this whole number and we have balance this chemical equation by number of moles and by mass relationship. And next we use equation rearrangement and to solve a stoichiometric problem. So we solve a first problem on base of these three relationships. So first problem, calculate the mass of carbon dioxide and water formed on complete combustion of 24 gram of methane gas and given atomic masses of different element. Atomic masses of different element. First, carbon, atomic mass 12, oxygen, atomic mass 16. So symbol is U, means unified mass, or gram, means this atomic mass given in gram. Next, hydrogen atomic mass is only 1 U. So this is 3 element, carbon 12 U, hydrogen 1 U, and ऑक्सीजन 16 U मीन्स यूनिफाइड मास. और यहाँ पे ये U रिप्लेस कर सकते हैं हम ग्राम में भी. तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है हमें, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है लेकिन रिएक्शन हो रही है मीथेन के साथ. सो मीथेन और कंप्लीट कंबशन टू फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो फर्स्ट वी राइट अ करेक्ट केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन. तो यहाँ पे हमें प्रोड्यूस हो रहा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर on complete combustion of methane gas. On complete combustion of methane gas. So methane chemical formula CH4. So in gas formation means
gaseous state. So we put a state in bracket methane gas react with means complete combustion. combustion हो रहा है मतलब ऑक्सीजन गैस से ही combustion होता है, तो यहाँ पे मैं ऑक्सीजन गैस लिख देती हूँ और यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर इन गैसियस स्टेट में फॉर्म है। तो यही रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे हमें स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज करने हैं ना बैलेंस करने के लिए, मतलब नंबर ऑफ मोल्स मतलब होल नंबर यूज करें। तो यहाँ पे कार्बन के कितने मोल्स है, यहाँ पे मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी लिख देती हूँ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन के कितने मोल है, ओनली 1 मोल है, और यहाँ पे हाइड्रोजन पे 4 है और ऑक्सीजन कितना है 2 मोल्स है, और राइट हैंड साइड पे कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल्स 3 मोल्स मतलब 2 + 1 3, और हाइड्रोजन के कितने 2 है। तो यहाँ पे हमें नंबर पुटअप कर देना और रिएक्शन बैलेंस कर देंगे, नंबर पुटअप कर देना और रिएक्शन बैलेंस कर देती हूँ। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 था और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे मैं 2 ऐड कर देती हूँ मतलब होल नंबर ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे ये 2 2 जा मतलब 2 आइटम है और इसको यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई 2 कर दिया मतलब 2 नंबर पुट कर दिया रिएक्शन बैलेंस में। तो यहाँ पे 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया, तो ये चेंज हो गया रेशियो। फिर यहाँ पे 4 हो गया लेकिन वहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे मैं पहले वाटर को रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 2 H2O मोल्स कितने हो गए 2, मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी बैलेंस करने के लिए कितने कर दिया, हाइड्रोजन वहाँ पे 4 थे तो यहाँ पे हमारे पास कितने थे ओनली 2, तो मैं यहाँ पे 2 2 जा कितना हो गया 4, तो यहाँ पे फिर से क्या हो गया हाइड्रोजन के 4, और ऑक्सीजन के कितने यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 2 × 1 2, so 2 + 2 we get a 4 atom. So carbon 1 in left hand side and right hand side also 1. Hydrogen 4 atom in right hand side also 4 atom. Oxygen in left hand side 4 atom and oxygen in right hand side also 4 atom. तो यहाँ पे क्या हो गया कार्बन के 1 एटम, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 4। तो यहाँ पे ये करेक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन हो गई। तो इसका मास कितना है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट अ मास ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये मैं रफ कर देती हूँ, ये हमारे रिएक्शन बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो मास ऑफ रिएक्टेंट, तो कार्बन के कितने एटम है 1 एटम है, इनटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है 12 प्लस 4 इनटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, तो 12 × 1 = 12 प्लस 4 × 1 = 4, कितने ग्राम हो गए 16 ग्राम। ऑक्सीजन के कितने एटम, यहाँ पे मैंने 2 प्लेस कर दिया और यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इनटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, सो 2 इनटू यहाँ पे 16 2 = 32, यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई होगा, मैंने जब ब्रैकेट ओपन कर दिया तो मल्टीप्लिकेशन होगा, 32 2 जा कितने हो गए 16 2 जा 32 2 जा कितना हो गया मतलब 2 2 जा 4 और 3 2 जा 64, मतलब यहाँ पे ये 64 ग्राम मिल गया ऑक्सीजन का। यहाँ पे फिर कार्बन का कितने मोल है 1 और यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ऑक्सीजन के कितने मोल है 2 एटम्स है इनटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 है, सो 12 + 32 हो गया, तो 2 + 2 4 और 3 + 1 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल गए हमें। फिर नेक्स्ट वाटर, तो यहाँ पे 2 मोल्स, यहाँ पे ब्रैकेट में अंदर मोलर मास ऑफ वाटर का फाइंड आउट कर दे, तो 2 atoms of hydrogen into atomic mass 1 plus 1 atom of oxygen into atomic mass 16, तो 2 1 = 2 plus 16 1 = 16, so 16 plus 2 into 2, तो यहाँ पे 2 into 18 कितने हो गए 36 ग्राम, कितने हो गए 36 ग्राम। सो यहाँ पे हमें 16 ग्राम CH4 on complete combustion will produce 16 ग्राम, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 16 ग्राम मीथेन गैस, 16 ग्राम मीथेन गैस on complete combustion, 16 ग्राम of methane gas on complete combustion produce 44 ग्राम of carbon dioxide, produce 44 ग्राम of carbon dioxide।
तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है 24 ग्राम मीथेन गैस के लिए कितना होगा। 24 ग्राम मीथेन गैस के लिए हाउ मच अमाउंट ऑफ ग्राम ऑफ CO2 गैस। तो यहाँ पे क्या 24 ग्राम के लिए कितना, तो यहाँ पे मैं x भी कंसिडर कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम सिंपली कैलकुलेशन कैसे कर देंगे, therefore 24 ग्राम ऑफ CH4 विच इज इक्वल, फर्स्ट हमारा कितना था कार्बन डाइऑक्साइड का मास यहाँ पे 44 और यहाँ पे कितना था मीथेन का 60 और हमें किसके लिए फाइंड आउट कर देना है 24। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 24 लिख देती हूँ। तो ये मतलब इससे हमें 24 ग्राम मीथेन गैस ऑन कंप्लीट कंबशन, सो हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड विल प्रोड्यूस। तो यहाँ पे मैंने 44 अपॉन ये मीथेन का 16 लिखा इनटू कितने ग्राम हमें कैलकुलेट कर देना है 24। तो ये सिंपली कैलकुलेशन कर देना। तो ये मैं क्या कर दे सकती हूँ 8 2 जा 60 8 3 जा 24, so 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4, so 22 into 3, so we get on multiplying this to value we get 66 gram of carbon dioxide will produce, 66 gram of carbon dioxide will produce। तो ये के लिए फाइंड आउट हो गया फर्स्ट के लिए, लेकिन हमें यहाँ पे वाटर के लिए भी फाइंड आउट कर देना। तो सिमिलरली 20 यहाँ पे क्या होगा अभी 16 ग्राम ऑफ CH4 विल प्रोड्यूस, यहाँ पे कितना मतलब 16 ग्राम ऑफ मीथेन गैस ऑन कंप्लीट कंबशन will produce 36 gram of water, 36 gram of water। so 24 gram के लिए कितने, so 24 we have to find out 24 gram of methane gas। so how will produce a water molecule, मतलब कितने ग्राम वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गए, मतलब हमने 16 ग्राम के लिए 36 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गए, लेकिन फिर हम 24 ग्राम मीथेन गैस लेंगे तो वाटर का क्या परसेंटेज मतलब ग्राम तो चेंज हो गया ना। तो यहाँ पे कितने सिमिलर हम मैं वैसे ही कर देती हूँ 36, यहाँ पे क्या 36 अपॉन 16 हो जाएगा, 36 अपॉन 16 इंटू क्या कर देंगे कितने लिए मीथेन गैस 24। तो यहाँ पे 8 2 जा 16 8 3 जा 24, so 2 1 जा 2 2 1 जा 2 1 remaining 2 8 जा 16, so 18 3 जा, we have to calculate 18 into 3 means 18 3 जा 54, so we get a 54 gram of water molecule will be produced, 54 gram of water molecule will be produced। मतलब ये था हमारा स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशनशिप। तो यहाँ पे मैंने क्या रिलेशनशिप से फाइंड आउट कर दिया मास मास रिलेशनशिप। तो हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा मतलब रिएक्शन, तो ये करेक्ट, इसके लिए हमें करेक्ट केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मीथेन गैस का केमिकल फॉर्मूला क्या है मीथेन CH4। तो यहाँ पे कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फॉर्म ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ मीथेन गैस। सो यहाँ पे मैंने फर्स्ट करेक्ट इक्वेशन लिख ली, फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन कर दी, फिर मास फाइंड आउट किया ईच रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एटम का, फिर मैंने क्या कर दिया मोलर मास भी फाइंड आउट हो गया ईच कंपाउंड का, फिर 16 ग्राम मीथेन ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 14 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 24 ग्राम में कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, तो 44 अपॉन 60 मतलब 44 कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास है और 16 का मीथेन का मोलर मास है इनटू कितने ग्राम के लिए हमें चाहिए था 24। तो ये सिंपली कैलकुलेशन करके 24 ग्राम हम CH4 यूज कर देंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना गैस प्रोड्यूस होगा 66 ग्राम, कितना होगा 66 ग्राम। और फिर नेक्स्ट में हमें चाहिए था 16 ग्राम, हम जब CH4 मीथेन गैस यूज कर रहे हैं तो हमें वाटर मॉलिक्यूल कितने ग्राम मिल रहे थे 36, लेकिन 24 यूज करने से कितना चेंज होगा मतलब 36 अपॉन 16 into 24, so we get 54 ग्राम of water molecule, we get
और 54 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये है हमारे फाइनल आंसर, मीन्स 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 54 ग्राम ऑफ वाटर। जब हम 24 ग्राम ऑफ मीथेन गैस यूज करेंगे तो इतने हमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड 66 ग्राम प्रोड्यूस होगा और 54 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। Second example, how much calcium oxide will be produced by decomposition of 5 ग्राम of calcium carbon? तो इसमें हमें गिवन क्या दिया है? A mass of calcium carbonate, कितना गिवन मास दिया है? 5 ग्राम, मतलब मास ऑफ कितना दिया है? 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो गिवन, मतलब गिवन मास ऑफ हमें फाइंड आउट कर देना है, मतलब मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना दिया है? 5 ग्राम। तो ये हमें फाइंड आउट कर देना है ना, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये दिया है 5 ग्राम के लिए कितना। सो नेक्स्ट वी हैव टू गिवन एज डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन कर देना, मतलब रिएक्शन ब्रेक कर देना। तो यहाँ से हमें एक क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन रिमेनिंग, सो वी फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड, वी फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो दिस इज डिकम्पोजिशन। कब होता है? जब हम कोई भी कंपाउंड क्रिस्टल को जब हीट कर दे तो वो क्या होती है? रिएक्शन ब्रेक होती है, मतलब वो रिएक्शन डिकम्पोज होती है। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग दैट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये गैस है, तो यहाँ पे ये गैस कैसे होता है? मतलब फॉर्म होता है ना, मतलब तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए वो सिंबल एरो दिखा दिया है। तो इसका भी मोलर मास फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? मोलर मास। तो कैसे फॉर्म करेंगे? कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, तो 1 एटम ऑफ कैल्शियम इनटू एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम 40 प्लस 1 एटम ऑफ कार्बन इनटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 प्लस 3 एटम ऑफ कार्बन इनटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 60। तो 40 1 जा 40 प्लस 12 1 जा 12 और प्लस 16 3 जा 48। तो यहाँ पे मतलब स्टूडेंट क्या मिस्टेक कर देते हैं, ये अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज नहीं, यहाँ पे पहले ये क्या कर सकते हैं, मतलब इन दोनों की एडिशन भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे मोलर मास गलत आ जाएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर देना, मतलब यहाँ से मैंने सिस्टमेटिक कर दिया, इन दोनों का पहले फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, और फिर मैंने एडिशन कर दी। तो यहाँ पे 14 प्लस 2 मतलब 8 प्लस 2 100 होगा, यहाँ पे 1 कैरी और होगा, तो 4 प्लस 1 5 प्लस 4 9 और एक हमारा कैरी और है, तो यहाँ पे ये कितना ग्राम हो? 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बन। ये था हमारा रिएक्टेंट साइड। और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड 1 ग्राम ऑफ मतलब 1 एटम ऑफ कैल्शियम इनटू एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम 40, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इनटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 60, so 14 plus 60, so we get 56 gram of calcium oxide। और नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड 1 into 12 plus 2 into 16, so 12 plus 30, we get 44 gram of कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब जब हम 100 ग्राम कैल्शियम, तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में पार्ट भी दिया है, मतलब वो ग्राम ही होता है, तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट यूज होगा, तो हमें कितने मतलब प्रोडक्ट मिल जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम। लेकिन हमें क्या बोला है इसके लिए, मतलब ये 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट produces 56 gram of calcium oxide, 56 gram of calcium oxide compound। so 5 gram calcium carbonate के लिए कितना प्रोड्यूस होगा कैल्शियम ऑक्साइड? so we have to find out 5 gram of calcium carbonate, so how much calcium oxide will be produced? So how much of calcium oxide will be produced?
तो यहाँ पे मैं विल प्रोड्यूस लिख देती हूँ सिर्फ। सो सिमिलर टू लास्ट एग्जाम्पल हमने कैसे कैलकुलेशन कर दिया, मतलब 56 डिवाइड बाय 100, 56 डिवाइड बाय 100 इंटू 5, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का कितना है 56 डिवाइड बाय कैल्शियम कार्बोनेट का कितना है 100 इंटू हमें किसके लिए, मतलब कितने ग्राम के लिए फाइंड आउट करना है 5 ग्राम के लिए। तो सिंपली कैलकुलेशन कर देना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0। तो यहाँ पे क्या होगा अभी, मतलब पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 68, तो 60 तो नहीं ले सकते, ये लार्ज नंबर है, तो 22 जा में लेती। तो कितने बचे 40, 56 माइनस 40 कितने हो गए 16 रिमेन हो गए। तो यहाँ पे कितना 16 रिमेन हो गए। तो यहाँ पे फिर 0 का मतलब, तो यहाँ पे मैं 0 रख देती हूँ यहाँ पे डेसिमल पॉइंट। तो 28 जा 160 होता है। तो ये हमारे कितने, मतलब कैलकुलेशन करके हमें कितने ग्राम मिल गए 2.8 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस, 2.8 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस। तो ये सिंपल एग्जांपल है। तो फर्स्ट हमें दिया होगा मतलब रिएक्शन का कोई तो कंसेप्ट, मतलब कोई तो पार्ट दिया होगा, वो तुम्हें इजीली मतलब समझ लेना है क्वेश्चन में क्या दिया है, कुछ क्या नहीं दिया। तो यहाँ पे क्या दिया, मतलब हाउ मच कैल्शियम ऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बन। तो कैल्शियम कार्बोनेट 180, इट डिकम्पोजेस, दैट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमें फाइंड आउट करना है रिएक्टेंट का मास, मतलब मोलर मास, और प्रोडक्ट का भी मोलर मास। फिर हमें क्या दिया 100 ग्राम के लिए 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जब हम लेंगे तो कितना कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। तो जब हम 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तो कितना होगा 2.8 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। मतलब तुम्हें टेक्स्ट बुक में मिस्टेक दी है वहाँ पे, मतलब आंसर में क्या दिया है 2.8 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दिया, लेकिन वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, बाय मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे जब हम 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तो कितना ग्राम प्रोड्यूस होगा कैल्शियम ऑक्साइड 2.8 ग्राम। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। So third example, how many liters of oxygen at ST standard temperature and pressure are required to burn completely 2.2 gram of propane। तो प्रोपेन का यहाँ पे केमिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H है। तो फर्स्ट यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है 2.2 ग्राम, 2.2 ग्राम प्रोपेन के लिए कितना मतलब प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। 2.2 ग्राम प्रोपेन देंगे तो कितना प्रोडक्ट, जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट कर देना, मतलब कितने ग्राम होंगे जो हमारा प्रोडक्ट होगा, वो जो प्रोडक्ट होगा वो कितना ग्राम प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे हमें सिंपल पता है, फर्स्ट ये भी हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन, मतलब प्रोपेन मतलब C3H8 ऑन कंप्लीट कंबशन, मतलब कंबशन होता है मतलब रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करता है, तो यहाँ पे O2, तो क्या प्रोड्यूस होगा, तो एक हमें पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल मतलब CO2 और H2। So next we have to find out this. Next we have to balance this equation. We have to balance this equation by using a whole number. Means by using a number of moles, we put a proper whole number and we have to find out a proper balanced chemical equation. तो यहाँ पे कार्बन के कितने मोल है 3 है और वहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे मैं CO2 के लिए कितने कर दूंगी, ये 3 है ना, तो यहाँ पे मैं 3 कर देती हूँ। तो कितना होगा कार्बन का वहाँ पे 3 होगा, लेकिन ऑक्सीजन का कितना होगा 6 और यहाँ पे 1 है 7 हो गया ना, मतलब यहाँ पे मैं ठीक से लिख देती हूँ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो यहाँ पे फर्स्ट कितना था 3 था, हाइड्रोजन के 8 था और ऑक्सीजन का 2 था इन लेफ्ट हैंड साइड। और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे कार्बन का फर्स्ट कितना था 1 था, हाइड्रोजन का 2 था और ऑक्सीजन का कितना था 3 था। लेकिन यहाँ पे कार्बन के कितने 3 मोल्स, यहाँ इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। तो यहाँ पे कार्बन के कितने हो गए 1 × 3 कितना हो गया
3 मोल्स हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का तो बढ़ गया, तो यहाँ पे 2 × 3 कितना हो गया, फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई तो 6 हो गया, मतलब ये 6 और ये 1 कितना हो गया 6, ये 3 2 6 और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये टोटल में काउंट लिख देते 7 हो गया, और हाइड्रोजन का एज इट इज 2 हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन वहां पे 7 होगा और यहाँ पे कितना है 2 ही है, तो यहाँ पे मुझे बैलेंस करने के लिए मैं सिंपली कर देती हूँ, मैं यहाँ पे 7 और 2 है, तो कितने कम है 5 कम है, तो यहाँ पे कितने हो गए 5 2 10 मोल्स हो गए, कितने हो गए 5 2 10 मोल्स हो गए, तो यहाँ पे कितना है, मतलब 3 2 6 प्लस 1 7, तो यहाँ पे भी बैलेंस करनी पड़ेगी। सो नेक्स्ट वी पुट अ होल नंबर फॉर वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे मैं कितने, मतलब ऑक्सीजन 10 है लेकिन यहाँ पे 7, तो यहाँ पे कितने रख देती हूँ, मतलब 3 रख दिया, तो यहाँ पे 6 हो गए, और हाइड्रोजन वहाँ पे 8 है ना, तो यहाँ पे मैं कितने रख देती हूँ 4 रख देती हूँ, तो 4 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितने हो गए 8, और यहाँ पे 3 2 6 प्लस ऑक्सीजन कितना होगा 10 हो गया ना, और कार्बन एज इट इज 3 तो 3, तो यहाँ पे फिर से मतलब कार्बन की वहां पे 3 है और यहाँ पे भी कितने 3 है, हाइड्रोजन सेम इन लेफ्ट हैंड साइड 3 और राइट हैंड साइड भी 3 है, और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए 10 10, तो ये रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो ये हमारी मतलब सेकेंड स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप क्या थी करेक्ट राइट अ करेक्ट केमिकल इक्वेशन, सेकेंड राइट अ करेक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन और बैलेंस केमिकल रिएक्शन, तो इसका भी हमें फाइंड आउट करना है मोलर मास, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम C3, तो 3 एटम्स ऑफ कार्बन इनटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 प्लस एटम ऑफ हाइड्रोजन इनटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, सो 12 3 36 प्लस 8, सो 36 प्लस 8 440 और 44 ग्राम ऑफ प्रोपेन, नेक्स्ट 5 मतलब 5 टू जा कितने मोल है 10 मोल है, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखती हूँ 2 इंटू ऑक्सीजन के कितना एटॉमिक मास 16, so 5 into 32, 16 टू 32 इंटू 5 करना है ना, तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर देना 2 5 10 और 5 3 15 प्लस 1 60, तो यहाँ पे कितना आ गया, लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए मतलब ऑक्सीजन लीटर में चाहिए, ऑक्सीजन क्या चाहिए लीटर में चाहिए, तो हमने लास्ट टॉपिक में मतलब एनी प्योर मोल ऑफ आइडियल गैस मतलब के बराबर होता है n अपॉन, मतलब ये हमने फाइंड आउट कर दिया ना आइडियल गैस इक्वेशन V अपॉन n विच इज इक्वल टू 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, so any pure mole of gas which is always equal to 22.414 liter, मतलब 1 mole of ideal gas occupies 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम, तो यहाँ पे हमें ये क्या है ऑक्सीजन कंप्लीट कंबशन, तो यहाँ पे लिए 44 ग्राम के लिए ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस होगा, तो ये हमें फाइंड आउट चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस 22.4 liter, 1 mole of ideal gas occupies 1 mole of ideal gas occupies 22.4 liter by volume, तो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट नोट लिख दी, तो यहाँ पे हम ऐसे मतलब तो वो हमें ग्राम में मिलेगा लेकिन वॉल्यूम में मिलेगा क्या लीटर में मिलेगा नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे कितने मोल्स थे हमारे मतलब टोटल कितने मोल्स थे 5, सो ये ऑक्सीजन लीटर में चाहिए ना, तो 5 इंटू हमें क्या होगा 22.4 से मल्टीप्लाई करना, मतलब ये ऑक्सीजन डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है ना, ऑक्सीजन क्या होता है डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल लेकिन हमें लीटर में चाहिए, ऑक्सीजन गैस लीटर में काउंट कर देना है ना हमें, तो ये क्या कर देंगे हम 22.4 लीटर ऑक्सीजन डायटोमिक गैस, तो सेम एज इट इज हमें चाहिए, तो 5 into 24 we get 112 liter, we get a 112 liter, so 44 ग्राम ऑफ प्रोपेन रिक्वायर, तो यहाँ पे हमें क्या मिला 44 ग्राम ऑफ प्रोपेन मतलब C3H8 रिक्वायर
to produce 112 liter of oxygen. Yes. 112 liter of oxygen for complete combustion. For complete combustion. For complete combustion. तो हमें फाइंड आउट करना है 2.2 ग्राम प्रोपेन. मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है 2.2 ग्राम ऑफ प्रोपेन विल रिक्वायर. तो 2.2 ग्राम ऑफ प्रोपेन जब हम लेंगे तो हाउ मच ऑक्सीजन विल बी प्रोड्यूस. हाउ मच ऑक्सीजन विल प्रोड्यूस. तो सिंपली हमारा लास्ट एग्जाम्पल के बेस पे कर देना है. तो यहाँ पे क्या होगा 112/40. हमें क्या कर देना है अभी 112/40. यहाँ पे 40 इंटू 2.2. तो इसका डिवीजन फर्स्ट कर देना और फिर मल्टीप्लिकेशन कर देना. तो इसका आंसर कितना आएगा 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी. इसका आंसर कितना है 5.6 लीटर एट एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस विल बी प्रोड्यूस. तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली प्रोड्यूस लिख देती ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस. तो ये था हमारा फाइनल आंसर फॉर कंप्लीट कंबशन. तो हमें फाइंड आउट कर देना मतलब हम सिंपली लास्ट एग्जांपल पे यहाँ पे ग्राम में ही कैलकुलेट कर दे, लेकिन यहाँ पे हमें लीटर में पूछा. तो ये ध्यान में रख देना 1 मोल ऑफ आइडियल गैस विच इज ऑक्यूपाई 22.414 लीटर. तो यहाँ पे मैंने मतलब होल नंबर 22.4 लिया है ना, मतलब 14 वो कट कर दिया. तो 22.4 लीटर बाय वॉल्यूम मतलब ये ऑक्सीजन गैस कितना ऑक्यूपाई कर रहा है 22.4 लीटर वॉल्यूम. तो 44 ग्राम के लिए 112 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है. तो हमें चाहिए 2.2 जब ग्राम हम प्रोपेन यूज करेंगे तो हाउ मच ऑक्सीजन गैस विल बी प्रोड्यूस फॉर कंप्लीट कंबशन. सो 112/44 into 2.2. So we get 5.6 liter at STP means standard temperature and pressure oxygen get produced for complete combustion. So this is our final answer. So fourth example, a piece of zinc weighing 0.635 gram, 0.635 gram. When means ये किसका मास है जिंक. treated with excess of dilute hydrogen sulfuric acid means H2SO4 sulfuric acid dihydrogen sulfate means sulfuric acid is treated with means reaction with sulfuric acid. excess with dilute ये कौन सा है dilute sulfuric acid liberated 200 सेंटीमीटर क्यूब. तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ liberated 200 centimeter cube of hydrogen gas at STP. Of hydrogen gas at STP means standard temperature and pressure. Calculate the percentage purity. हमें कैलकुलेट कर देना है percentage purity. Percentage purity of the zinc sample. मतलब कितना प्योर है परसेंटेज प्योरिटी ऑफ जिंक सैंपल. तो यहाँ पे हमें क्या दिया है मतलब 1 पीस ऑफ जिंक वेइंग कितना ग्राम आ रहा है 0.635 और वो रिएक्शन कर दे रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. तो हमें क्या मिल रहा है मतलब हाइड्रोजन गैस मिल रहा है कितना ग्राम मतलब 200 सेंटीमीटर क्यूब एट एसटी. तो हमें कैलकुलेट कर देना है परसेंटेज प्योरिटी ऑफ जिंक सैंपल. तो फर्स्ट वी राइट अ करेक्ट केमिकल इक्वेशन. सो जिंक रिएक्ट विद dilute sulfuric acid so that give first hydrogen gas. और यहाँ पे क्या होगा जिंक प्लस सल्फेट. तो यहाँ पे जिंक सल्फेट फॉर्म हो गया मतलब ZnSO4. तो ये फॉर्म हो गया जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड दैट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस. तो इट इंडिकेट. तो यहाँ पे हमने अभी लिखा ना 1 मोल ऑफ आइडियल गैस
occupies 22.4 liter volume at STP, liter volume at STP, at standard temperature and pressure, at STP standard temperature and pressure, which is equal to 65 ग्राम ऑफ जिंक। मतलब यहाँ पे जिंक का एटॉमिक मास कितना है Zn, which is equal to 65। एटॉमिक मास कितना दिया 65, तो ये कितना होगा 65 ग्राम ऑफ जिंक। तो हाइड्रोजन गैस कितना प्रोड्यूस होगा, तो हाइड्रोजन गैस क्या होगा, कितना प्रोड्यूस होगा। तो 65 ग्राम के लिए हमें फाइंड आउट कर देना हाइड्रोजन गैस कितना प्रोड्यूस होगा। तो हमें क्या करना है, मतलब यहाँ पे 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम। सो ये 200 सेंटीमीटर क्यूब का हमें कन्वर्जन कर देना है लीटर में। तो वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ हमें कितना दिया है लिबरेटेड 200 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, मतलब लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना दिया है, लीटर में चाहिए ना वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये 200 सेंटीमीटर क्यूब का मैं कन्वर्जन कर देती हूँ लीटर में, कितना होगा ये 200 डिवाइड बाय 1000 तो कितना होगा 0.200 लीटर ऑफ H2, मतलब हाइड्रोजन गैस 0.200 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। तो हमें फाइंड आउट करना है, मतलब इसके लिए कितना होगा। तो सिंपली क्या कर देंगे हम 65 ग्राम 65 ग्राम डिवाइड बाय ये 22.4 होगा इंटू कितने लीटर की 0.200 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस, मतलब 65 ग्राम डिवाइड बाय 22.4 लीटर इंटू 0.200 लीटर। तो हमें क्या मिलेगा, कितना ग्राम प्रोड्यूस होगा जी, ये कितना, मतलब इसके लिए ये इतना है 60 ग्राम लेंगे तो 22.4 लीटर प्रोड्यूस होगा। लेकिन ये हमें दिया है, ये क्या दिया है 0.200 लीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है कितना जिंक प्रोड्यूस होगा। तो जिंक कितना प्रोड्यूस होगा, जिंक प्रोड्यूस we take 0.200 liter of hydrogen gas, we take 0.200 liter of hydrogen gas. So how Zn produce, how zinc will be produced, तो कितना होगा 65 upon 222.4 into 0.200. On calculating this value we get 0.58 ग्राम of zinc। कितना मिलेगा 0.58 ग्राम of zinc। मतलब जब हमने 0.200 लीटर हाइड्रोजन गैस ले लिया तो हमें जिंक कितना मिला 0.58 ग्राम। अभी हमें निकालनी है परसेंटेज प्यूरिटी, हमें निकालनी है परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ जिंक सैंपल। तो हमारा अभी कितना आ गया 0.58 और कितना मास दिया है, ये दिया है ना 0.635। तो 0.58 डिवाइड बाय कितना गिवन मास है 0.635 इंटू हमें क्या करना पड़ेगा 100। तो ये हमारा जो परसेंटेज निकल आएगा कितना 91.33% ऑफ जिंक, 91.33% ऑफ जिंक। मतलब इस रिएक्शन में हमें मास दिया है जिंक का 0.635 और वो रिएक्ट हो रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। वो कितना लिबरेट कर रहा है हाइड्रोजन गैस 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सेंटीमीटर का हमें लीटर में कन्वर्जन कर देना है और जिंक का एटॉमिक मास 65। तो फर्स्ट वी हैव टू राइट करेक्ट केमिकल इक्वेशन, जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम एट STP। तो यहाँ पे 65 ग्राम के लिए 20। तो हमें फाइंड आउट करना है 0.200 लीटर के लिए कितना जिंक प्रोड्यूस होगा। तो सिंपल, मतलब 65 डिवाइड बाय 22.4 इंटू कितने ग्राम के लिए 0.200। तो यहाँ पे 0.58 ग्राम ऑफ जिंक मिल गया और परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ जिंक सैंपल निकालना है। तो यहाँ पे कितना आ गया 0.58 डिवाइड बाय गिवन मास 0.635 इंटू 100। वी गेट 91.33% ऑफ जिंक सैंपल। तो
एग्जाम्पल मतलब डायरेक्टली समझ में नहीं आएंगे, जब तुम इसे देख के नोटबुक में मतलब कॉपीज में सॉल्व कर देंगे, और जो तुम्हें डाउट होगा कन्फ्यूजन होगा तो वहाँ पे मुझे पूछ लेना, मतलब यहाँ पे क्या करना है क्या। लेकिन जब तक तुम खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तो तब तक कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। इसलिए यहाँ पे इस मतलब एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। So I hope you understand all these concepts. Means this example based on stoichiometric coefficient, means stoichiometric calculation. So I hope you understand clearly of this concept, means stoichiometric calculation. If you have any doubt or queries, so ask me. Thank you, student.